एक और बार बोलेंगे, प्यारे यीशु ने आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। मेरी पापी अवस्था में परमेश्वर अब आएगा तू, फिर एक अपने कलीसिया को लेके जाने के लिए अब आएगा तू, फिर एक बादलों पे करने हमसे मिलन। कलीसिया गाएंगे, आंखें खोलिए प्रभु जी, को हम निहारे। परमेश्वर से बोलिए, आंखें आखिरी बार बोलेंगे, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को निहार। परमेश्वर आज हम यहाँ पे तेरे भवन में हम आए हैं परमेश्वर, सिर्फ तेरी आंखों को निहारने के लिए। We're here to see your glory. We are here to experience your Holy Spirit in our life of our family, Lord Jesus. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. I can sing of your love. Yeah. Over the
प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। परमेश्वर, हम तेरे प्यार के गीत गाते जाएं। परमेश्वर, हमारा जीने का मकसद सिर्फ तेरे साथ संगति करने के लिए है, और हमारी संगति हमारी आराधना से हमारे प्यार इजहार करने के लिए हो पाए, यही हमारी दिल की दुआ है। परमेश्वर, हम मानते हैं परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला मालिक तू ही है, तू ही रब है, तू ही सब है। परमेश्वर, तू ही शुरुआत है, तू आदि है, तू अंत है। परमेश्वर, तू हमारी हर चीज की दुआ है। परमेश्वर, तेरे लिए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। आमीन। क्यों ना ताली बजा के परमेश्वर के भवन में हम आनंद के साथ सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही सबसे अलग है। अटे है हमको सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसी के करते हैं प्रणाम। सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हैं हम तो है तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा।
just want you to tell somebody beside you that you're having an amazing time in church. Hallelujah. Can you tell somebody beside you? अपने आजू बाजू के लोग को बोल सकते हैं कि आज परमेश्वर के भवन में हम आए हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत खुश हैं. Amen. Can you tell somebody? मैं देख रहा हूं आपको. हंस के बोलना. Jesus is better than life. Hallelujah. Amen. Let's clap our hands. Let me tell you something. Love is everlasting. It's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. Say, your love and kindness, your love and kindness, better than life. Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. Say, your love and kindness, your love and kindness, better than life. Yes, Lord. Sing out, say, whoa, it's better. Whoa, better than life. Whoa, so much better. Jesus, your love and kindness, hey, better than life. Your love is everlasting, say, your love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. Your love and kindness, your love and kindness, better than life. Oh, yeah, your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory is forever on display. Your love and kindness, your love and kindness, better than life. Everybody say, oh, it's better. Say, oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your love is better. Hey, better than life. Oh, Jesus, Jesus, your loving kindness, better than life itself, better than life itself. Jesus, Jesus, your loving kindness, better than life itself, better than life itself. One more time, say Jesus, Jesus, your loving kindness, your loving kindness is better than life. Your loving kindness, better than life, better than life. Say, whoa, it's better.
Jesus, your love is better than life itself. We thank you, Lord, for your everlasting love in our life. परमेश्वर, हमारी दिल की चाहत, हमारी दिल की ख्वाहिश is to know you more, Lord Jesus. इस समय हम आपके पास आना चाहते हैं, आप पे हम शरण लेना चाहते हैं परमेश्वर। आपकी पनाह में हमको रखे। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, इतना है
साथ ही हम पूरा होते हैं। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं, हमारे दिल में जो भी चीजें हैं जो हमको आपसे अलग करता है परमेश्वर, वो चीज आप निकाल दीजिए। और जो भी चीज जो हमसे आपको अलग करे, वो चीज हमें नहीं चाहिए लॉर्ड, क्योंकि आपके साथ ही हम पूरा होते हैं परमेश्वर। ऐसा कोई भी चीज नहीं जो हमको पूरा कर सके परमेश्वर। ये समय आपके लिए है। ये समय आप सोचे उन सभी चीजों जो परमेश्वर के रिप्लेस में, वो सभी चीजें इस समय हम कबूल करें और परमेश्वर के आगे आए और बोले, प्रभु हमें सिर्फ तू चाहिए, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल तू, केवल तू। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। Father, we thank you, Lord Jesus. I want you to know that whatever Jesus has said in your life, when you were a little girl, a little boy, those promises may be delayed, but they are not denial. Because the word of the Lord says whatever comes out of his mouth is yes and amen. Hallelujah. So your promises are yes and amen. And all your promises are yes and amen. About your children, about your future, all your promises are yes and amen. Yes, they are, Lord. All your promises. Faithful you are.
I just want to take a minute. अपने आंखों को बंद करते हुए वो सारी चीजें जो किसी ने आपके बारे में बोला, किसी ने आपके बच्चों के बारे में बोला, ये वो समय है कि आप परमेश्वर को अपने हाथ उठा के बोले, परमेश्वर लोग भूल गए हैं मगर मैं नहीं भूला हूँ परमेश्वर. The calling upon my life, the calling upon my children, Lord, the prophecies over my life. आपके ऊपर जो भविष्यवाणी हुई है, आपके ऊपर जो परमेश्वर के लोगों ने हाथ डाल के बोला है कि बेटा बेटी तेरे जीवन में ये होगा, उन चीज़ों को आज परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर उन वायदों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, उन वचनों को हम कभी नहीं त्यागेंगे. परमेश्वर तेरे वचन को, तेरे वायदों को आज हम पारिवारिक रूप पे एक इंडिविजुअल रूप में परमेश्वर हम we hold on to the promises, the legacy that you have given to us and our family and our children and our children's children, Lord Jesus. परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर हम नहीं भूलेंगे जो तूने हमारे जीवन में किया, हम नहीं भूलेंगे परमेश्वर. अगर आज कुड़कुड़ापन है आपके जीवन में, tell the Holy Spirit to make you new. Tell the Holy Spirit to touch you. Father, in the name of Jesus. परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर तेरे वायदों को हम हाँ और आमीन बोलते हैं. परमेश्वर हबाकुक में ऐसे लिखा है, जो दर्शन मैंने दिया है तेरे को उसके लिए इंतजार कर. Wait for it because in its appointed time it will come to fruition. Hallelujah. उसके सही समय पे, उसके सीमित समय पे उसका उत्तर आपको मिलेगा. उन वायदों को आप पकड़ के रखिए यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. हम सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं. और सारे लोगों ने बोला आमेन. क्यों ना जोरदार ताली बजाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. आमेन. Praise the Lord. For today's Psalms reading, take with me Psalm 62 and 63. We read as usual, one by one. If everybody taken, please say Amen. For God alone my soul, wait in silence. From him comes my salvation. How long will all you attack a man to batter him like a leaning wall, a tottering fence? For God alone my soul, wait in silence, for my hope is for him. On God rest my salvation and my glory, my mighty rock, my refuge is God. Those of low estate are but a breath, those of high estate are a delusion. In the balance, they go up. They are together and numbered. Once God has spoken, twice have I heard this, that the power belongs to God. O God, you're my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faint for you, as in the dry and weary land where there is no water. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. My
My soul will be satisfied as with fat and rich food, and my mouth will praise you with joyful lips. For you have been my help, and in the shadow of your wings I will sing for joy. But though those who seek to destroy my life shall go down into the depths of the earth. Last word we read together. But the king shall rejoice in God. All who swear by him shall exult, for the mouth of his liars will be stopped. Amen. Amen. Why don't you just take a minute and say praise the Lord to somebody that you don't know? आप अपने 1 मीटर रेडियस में जा सकते हैं, इधर आगे पीछे मुड़ सकते हैं, नहीं तो 1 मीटर का मतलब 3 फुट है, 3.2 फीट. उसके रेडियस के अंदर आप जाके किसी को मिल सकते हैं. Say hi to somebody that you don't know. And at that time, I'm going to request the Sunday school students to please come forward as Viju uncle will pray for them. Please come, Sunday school children, come forward. We pray for them. Come quickly for Heavenly Father, we come to the mighty presence, Lord Father. We commit all these children to your hand, Lord Father. Lord, give them enough wisdom, knowledge to grow in you, Lord Father. Lord, I pray for all the faculties, O Lord Father. Lord, give them enough wisdom, knowledge to teach them, O Lord Father. Lord, once again, I commit everyone to your hand, O Lord Father. In Jesus' mighty name I ask. Amen. Praise the Lord. जय मसीह की. Praise the Lord. गाड़ी गरम हो रही है. Praise the Lord. I believe we have over 200 people here. Can somebody praise the Lord? Amen. I know that you want me to do it 7 times, but I'm not going to do it. मैं जानता हूँ आप चाहते हैं कि मैं 7 बार जय मसीह की करवाऊं, पर नहीं करूँगा. I just want to welcome each one of you in God's house this morning. आज की सुबह मैं आप सभी को परमेश्वर के भवन में स्वागत करना चाहता हूँ. We want to welcome any and everyone who's come to our church for the very first time. If you are here, we would love for you to just stand up in your respective places, and we would like to acknowledge you this morning. यदि आप में से कोई पहली बार आज यहाँ पर हमारे साथ मिस्पा हॉल में आराधना के लिए जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपने आप को परिचित करें. Wonderful. We have an auntie here. We have a sister there. We have quite a few people here. कुछ लोग, बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में हैं. Amen. And we want to let you know, I just want to let you know, you're going to know how much we're happy to see you, because you're going to see how loud our clap is going to be, because we're so happy that you are here this morning. हम कितने खुश हैं, इस ताली के द्वारा आपको प्रकट करना चाहते हैं कि आज आप यहाँ पर आज हमारे बीच में आए हैं. And thank you for coming. आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And we want to let you know that after the service, the serve team is going to come to each one of you. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्विस के बाद सर्व टीम आपके पास आएंगी. And they will escort you to our guests lounge, which is at the left, outside on the left. वो आपको इस हॉल के बाहर बाएं हाथ पर एक गेस्ट लाउंज है, हमारे वेलकम सेंटर वहीं पर है, वहां पर आपको लेकर जाएंगे. And you will get the privilege of meeting our senior pastor and his wife
and the leadership team will be there. We'll have some snacks, and we have a small gift we want to give to you as a token of our love and appreciation. अब वहाँ पर आप हमारे कलीसिया के सीनियर पासवान पास्टर इब्राहिम और उनकी पत्नी से वहाँ मिल सकते हैं और कुछ तोहफा हम आपको देना चाहेंगे, ज़रूर उसे ग्रहण कीजिएगा. Amen. So I request you that please, we are so happy that you're here, and we believe that you have experienced the power and presence of God during this service this morning. मैं खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पर हैं. हम सभी इस बात पे खुश हैं कि आप यहाँ पर हैं और मैं आशा करता हूँ कि अपने परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके सामर्थ को आज की सुबह यहाँ पर महसूस किया. Just want to give you a few announcements before we go forward. कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स मैं आपको देना चाहता हूँ. Firstly, we just want to apologize for the baptism service not happening today. सबसे पहले जो आज बैप्टिज्म सर्विस होना था वो नहीं हुआ, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ. There were two reasons for that. उसके दो कारण थे. First being that, we have to be very, very wise on how we conduct all these baptism services, because last time when we had a baptism service, we had an incident which was not favorable for us. जब बपतिस्मा की सर्विस हम करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है. पिछले बार कुछ अनहोनी हुआ था. And we also wanted, because it was raining, the whole pool got very, very dirty. So if it rained today, it would not be possible for us to baptize you, because we didn't know whether it will rain or not rain. We needed a patch where it's going to be sunny so that we can fill the water, because the previous day, the dirty water, the rain water came into the tank and it totally dirtied the whole tank. बारिश की वजह से हमारा जो बैप्टिज्म टैंक है, जो पूल है, उसके अंदर गंदा पानी भर जाता है. तो इसलिए हमें पक्का नहीं था कि आज बारिश होगी या नहीं, परंतु हम एक ऐसे दिन के लिए देख रहे हैं जिस दिन धूप निकलेगी और गंदा पानी उसमें नहीं भरेगा. And I know all of you have done your baptism classes, and we're so excited, and we have almost 7 people. How many people do we have? 7 people who are taking the next step of their walk with Jesus Christ. मैं आशा करता हूं कि आपने अपने बैप्टिज्म क्लास को पूरा कर लिया है और 7 लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं. Amen. And it's an amazing thing. So I want to let you know, especially I'm going to call out, I'm going to put you guys on blast, all the North Campus folks. I came to know that many of you have been coming to our church for a couple of years and you have not taken the next step. I am going to catch each one of you and make sure that I will make you take the next step, because we don't know how long we have you with us, but we want to make sure that we make you a true disciple of Jesus Christ. Amen. नॉर्थ कैंपस में बैठे जो छात्र हैं, जो लोग यहाँ पे सर झुकाकर बैठे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे बीच में. उनमें से जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं दिया, हम पूरी कोशिश करेंगे जितने समय आप हमारे बीच में, उस समय के अंदर अंदर हम आपको प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे शिष्य बनाएं. We were so proud last week because I was seeing on my phone the debits were coming, because we were able to send our first month's support to our friends in Manipur. Praise the Lord. पिछले सप्ताह में व्हाट्सएप को देख रहा था और हम पहले बार जो सपोर्ट जो हमें देना था मणिपुर को हम भेज पाए हैं. उसके बहुत सारे फल को मैं अपने व्हाट्सएप में देखने को पाया. We want to thank our senior pastor and Sister Joyce for giving them the desire to want to help 15 families with 5,000 rupees each for the next 6 months. अगले 6 महीने के लिए 15 परिवारों को 5-5 हज़ार रुपए की मदद करने का जो हृदय परमेश्वर ने पास्टर इब्राहिम को दिया, उसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ. Unfortunately, one account number was wrong, so it was 14, but it will be 15 by Monday. एक अकाउंट नंबर गलत था. मैं जोक मारने की कोशिश कर रहा था, एबल ने मेरी झंड करा दी, और मैं कह रहा था कि 14 अकाउंट है, क्योंकि एक व्यक्ति का अकाउंट नंबर गलत था, मगर 15 मंडे तक हो जाएगा. Amen. That's what we were trying to say, and we want to thank everyone. I want to just thank you from the leadership team for your generosity that has been shown by every member of this church who has put their hand forward towards this initiative. आप में से हर एक लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, जिन्होंने दिल खोलकर इस बात के लिए अपना दिल सिर्फ ही नहीं, अपना बटुआ भी खोला है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ लीडरशिप की तरफ से और कलीसिया की तरफ से. मैं तहे दिल से आभारी हूँ. Honestly, if you ask me, I thought that we would probably raise half the money from the church, and half the money would have had to be subsidized by the believers, and half would have come from the church.
और आधा जब भी मैं कोई चीज़ के लिए बोलता हूँ देने के लिए, तो कलीसिया ज़्यादातर समय उसका आधा हम खुद ही उसको पूरा कर देते हैं, उसके अलावा बाकी कलीसिया उसमें आधा डालकर उसको पूरा कर देती है, अनुदान देकर पूरा करती है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैंने सोचा कि इस फंडरेजर के लिए हम सिर्फ शायद आधा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे और आधा पैसा चर्च को देना पड़ेगा, बट आई वांट टू गिव यू द अमेजिंग न्यूज़ दैट यू Capital Christian Center gave all the money plus more for the people of Manipur. Amen. माफ़ी चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। Amen. We can never ever outgive God. How many of you believe that? हम Never कभी भी ever. परमेश्वर को देकर उसे तृप्त नहीं कर सकते, उसे देकर हम खत्म नहीं, उसे एक तरफ धकेल नहीं सकते हैं। You know, and I want to request you, we have already sent the money out, whether you have sent the money or not. I want you to know it's your commitment. Please give it online or in the envelope and put Manipur Relief on that, and we will make sure that money is designated for the people of Manipur. मैं चाहे आपने अभी तक धनराशि दिया हो ना हो, आपके जिस सीट पर आप बैठे उसके आगे एक एनवेलप है, आप उसमें लिख कर आप उस धन को डाल सकते हैं। लोगों से, हमारे पीछे जो टीम है उनसे मिल सकते हैं। आप ज़रूर उस बात में अपने कदम को आगे बढ़ाइए। And also I got a good news yesterday. I was talking to one of the sisters from Manipur. They were saying that, oh, I loved all the clothes and the kurtis that they got, and they were so happy. And I told them, you know, we don't know how to help you. We just try to do whatever we can. So if they want kurtis, how many of you want to donate kurtis? I don't have kurtis. I have kurtas. I can give kurtas, but whatever our friends need, whether it be clothes or shoes, we've made a small WhatsApp group. I've told them, please tell us how we can help, and we would love to help them. यदि आप जिस तरीके से आप उनको मदद कर सकते हैं, कीजिएगा। कपड़े, राशन, धन, या फिर आप उनके साथ किसी समय बिता सकते हैं, तो ऐसे भी आप ज़रूर उनके साथ समय उनको मदद कीजिएगा। यदि किसी के पास कुर्ता है, कुर्ती है, कपड़े हैं, जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं, ज़रूर अपने मदद को आगे बढ़ाइए। Amen. I want to just remind you, we have our Thursday online cell group that is happening. थर्सडे सेल ग्रुप रेगुलर होने वाला है, इस बार भी होगा। And you know, I want to continue. I was speaking about a topic yesterday, and I want to continue that on the cell group maybe for 2 weeks. It's talking about the calling of God upon every believer's life. जो कल हमने जिस बारे में लिंक में चर्चा की, उसी विषय पर मैं थर्सडे आने वाले मीटिंग में रात को सेल ग्रुप में मैं चर्चा करूंगा। उसका शीर्षक यह है कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में क्या है और उसके प्रत्युत्तर में हम क्या कर सकते So हैं। we want to remind you, please join in. We have almost 35, 40, 50 people sometimes that join. I want to let you know that join in, plug in to what God is doing in our church. Plug in to learn more about God. Spend time in prayer. We have Friday fasting prayer in morning, afternoon, evening. It's not just for aunties, it's not for older people, but it's for every believer in our church to join, because we have nothing without prayer. उस मीटिंग में ज़रूर जुड़िए जो परमेश्वर ने आपके लिए बुलाहट रखी है, उसमें ज़रूर आप भाग हो। ये लगभग 50 लोग आते जाते हैं उस मीटिंग में, पर आप भी ज़रूर आए। सिर्फ संख्या ही नहीं, आप अपने तन मन आत्मा के साथ भी उसमें जुड़िए। I want you to know that many of you may be working, many of you may be traveling, but all of us have earphones. I've seen so many people, their video is off, but they can hear everything that is happening. Even you hearing prayers is going to be a blessing for your life. यदि आप काम पे है, शायद हो सकता है आप काम पे हो, यात्रा कर रहे हो, पर सबके पास ईयरफोन है, कान में लगा लीजिए, प्रार्थना सुन लीजिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग का वीडियो ऑन होता है, कुछ लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग काम में होते हैं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में होना, प्रार्थनाओं को सुनना, वचन को सुनना भी एक आशीष है। When you prioritize prayer in your life, you will see God will prioritize you in His life. जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को प्राथमिकता देता I है। want all the ladies, it's going very well. We want you to continue on. The ladies meeting on Thursday is going amazingly well. I want all of you to join in and come and be a part of that fellowship. बहनों की जो मीटिंग है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे जो उस मीटिंग में नहीं आने वाले बहन हैं, उन लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर उसमें जुड़िएगा और जॉयस आंटी से उसके लिए संपर्क कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही आशीष का कारण है। Next week we will be having our harbor for our teenagers, and God is going to richly bless our teenagers on Saturday. आने वाले सैटरडे को हार्बर है, एक नई लोकेशन पर है, तो ज़रूर मुझसे मिलिएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर है और ज़रूर उसका भाग बनिए। Amen. And God is doing an amazing work in our church. Amen.
हमारी कलीसिया में परमेश्वर बहुत ही अच्छे अद्भुत रीति से कार्यों को कर You know, रहा in है। this baptism that we're having, we're almost having 3 people who are teenagers who are deciding to get baptized. और हमारे इन 7 लोगों में से 3 ऐसे लोग हैं जो टीनेजर्स हैं जिन्होंने बपतिस्मा लेने के लिए तैयार किया है, And अपने if आप we को would तैयार have, किया and है। if we would have allowed an 8-year-old also wanted to get baptized, but Pastor Abraham said you have to wait for 1 or 2 years. We have God working in everybody's life at Capital Christian Center. इस जगह में, Hallelujah. इस कलीसिया में परमेश्वर हर एक जीवनों में, हर एक प्रकार के उम्र दराज के लोगों के बीच में काम कर रहा है। 8 साल के बच्चे ने भी बोला मुझे बपतिस्मा लेना है, परंतु पास्टर इब्राहिम ने बोला नहीं, 1-2 साल और रुक जाओ, रुक कर फिर बपतिस्मा लेंगे। Amen. God is doing a great work in our church. परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्यों को कर रहा We है। are expecting 500 people before December in this auditorium. दिसंबर से पहले इस ऑडिटोरियम में हम 500 लोगों से ज्यादा हम यहाँ पर आशा करते हैं होंगे। I'm hoping in January we're going to have 2 services जनवरी में यहाँ पे 2 सर्विस होंगे, because 500 people will not fit. We will have 1 service earlier and then the next service so that we can grow even the second service and we can get ready for our promised land which is on top. Hallelujah. जनवरी में 2 सर्विस होंगे, एक थोड़ा जल्दी होगा और एक थोड़ा बाद में, ताकि ये जो 500 लोग आते हैं सबको बैठने की जगह मिले, सब लोग अपने अपने हिसाब से आराधना कर पाएं और जल्द से जल्द हम अपने परमेश्वर से जरूर मिलेंगे। We're going to get ready to give, but before that I'm going to ask our elder John Massey uncle. He wants to share a small testimony from his about what is happening in his life. I want to invite him forward. He's going to come. I want the ushers to get ready. I want the musicians to get ready to give unto God. He's going to come and share a brief testimony of what God is doing in his life. दान देने से पहले मैं चाहूँगा भाई जॉन मसीह अभी आगे आएंगे और वो एक गवाही को जो परमेश्वर के जीवन में किया है वो करेंगे। तब तक टीम और अशर्स तैयार हो जाएं। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे परिवार में बहुत बड़ी चमत्कार किया है। परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे पिछले दिनों में मेरी मिसेस का ऑपरेशन हुआ था और उसके लिए आप सब लोगों ने प्रार्थना किया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर आर इब्राहिम का, जिन्होंने प्रार्थना के साथ उसको यहाँ से विदा किया था ऑपरेशन के लिए। और धन्यवाद देना चाहता हूँ सिस्टर जॉयस के लिए, जो हमेशा उसके बारे में पूछते रहते हैं और ऑपरेशन के दिन भी उन्होंने फ़ोन करके पूछा कैसा हाल चाल है, कब ऑपरेशन होगा। वो लगातार हमसे संपर्क में थे। और मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर रंजीत, पास्टर साइमन का, जिन्होंने हमेशा हमारी बातों को अपडेट किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एक ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के लिए मदद और सहायता किया है। जैसा हम सोच रहे थे उससे बढ़कर प्रभु ने काम किया है। जैसा कि ये जब हमें पता लगा, डायग्नोस हुआ कि लालमा को यूट्रस में सिस्ट है, उस दिन से मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। मुझे एक वाक्य याद आता था बाइबल में। एक स्त्री है जिसको लहू बहने की बीमारी थी। उस स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो गई। उसी आयत को लेकर के मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जी मैंने भी आपके दामन को पकड़ा है, आप मेरी प्रिय पत्नी को आप चंगा कर दीजिए। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और उसने उसको चंगा किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग यीशु मसीह का दामन पकड़ लेते हैं, यीशु मसीह उनको कभी छोड़ता नहीं है। प्रभु से मैंने यही कहा, प्रभु जी मैंने भी तेरे दामन को पकड़ा है उस स्त्री की तरह। तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और उसको चंगा किया। और आप लोगों के प्रार्थना के प्रतिफल उसको प्रभु ने चंगा करके अभी वो घर में आराम से रेस्ट कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबने उसके लिए प्रार्थना किया। मैं हम सभी भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने फ़ोन करके और पर्सनली प्रार्थना किया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और एक गवाही में भी आपके बीच में और देना चाहता हूँ। मेरा बेटा जॉनी है, जिसको इस साल प्रभु ने NIS डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन दिया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दाऊद की तरह मैंने भी एक प्रभु से भजन संहिता 27 में जो लिखा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, मैं उसी के यत्न में लगा रहूँगा। मैं निरंतर जब प्रभु जिस दिन जॉनी ने ये फॉर्म भरा, उस दिन से मैं इस आयत को लेकर के प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी मैंने एक वर तुझसे मांगा है कि मेरे बेटे को
इस एनएस में एडमिशन मिलने के लिए मदद और सहायता करना। प्रभु ने हमारे सोचने से बढ़कर उसके लिए काम किया, ये रास्ता खोला है। उसको सारे रिटर्न एग्जाम में, सारे उसके जो इंटरव्यूज में, उसका फिजिकल फिटनेस में, सभी क्षेत्र में प्रभु ने उसको आशीष दिया, उसको कामयाब किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु हमारा भला है। हम जो प्रार्थना करते हैं प्रभु उसको कभी अनसुनी नहीं करता। प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली से सिर्फ जॉनी ही उस डिप्लोमा कोर्स में सेलेक्ट हुआ है। बहुत से लोगों ने उसमें भरा था, लेकिन जॉनी उसमें दिल्ली से वही अकेला बंदा है जो सिलेक्ट हुआ है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसकी तमाम बरकत और आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वचन संहिता 116 उसकी 12 में ऐसा लिखा है कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसको क्या दूँ। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसको क्या दूँ। मैं केवल धन्यवाद का कटोरा उठाकर प्रभु को प्रार्थना करूंगा। आप प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष करें। Amen. What an amazing testimony. Can we give glory to God? क्या ही अद्भुत एक गवाही है। ताली बजाकर हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। Amen, amen, amen. Let's get ready to give. I request the ushers to please come forward as we get ready to give. You can give online, you can give in the QR code in the back. There's a swiping machine. In whatever ways you can give unto God, so that it will be a blessing for you and your life. अभी अशर्स आगे आएंगे और जिस भी तरीके से आप देना चाहें आप दे सकते हैं, और ऑनलाइन भी दे सकते हैं। QR कोड है, पीछे कार्ड स्वाइप करने की फैसिलिटी है। किसी भी तरह का उपयोग कीजिए और दान दीजिए। So I'm going to request Brother Jairaj has a special song for us. Let's get ready to give unto God. भाई जयराज Praise the अपने Lord, बारे में church. गीत गाएंगे। Praise the Lord, church. Hallelujah. मेरे मन प्रभु की तू आराधना
जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वास ही में था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, यीशु भला है। थैंक यू। Amen. We're going to pray for the offering right now and for the word of God that's going to come. Heavenly Father, we just want to thank you for this opportunity for us to give unto God. We thank you, Lord, that there is nothing greater, there's not a bigger privilege for us than to give back to God what you have given us first. I pray that we give sacrificially, we give with a heart of generosity. We pray that you may be with us, you may guide us, and I pray that as we give unto God, I pray that money may only be a very insignificant byproduct, but we decide to give our time, our sweat, our life, our family, our children. Let us commit those aspects of our life also to God and give the best to God in everything that we do, Father. We thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. One thing I forgot, which we're going to do, anyone celebrating their birthdays or anniversaries in the month of August, we want you to stand up in your place and we're going to sing a song for you. इस महीने यदि आप जन्मदिन या एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। All right, don't be shy. शर्माइए मत, यहाँ भी का महीना है। I want to give you an offer, but don't lie, you're in church. If you tell the shop, खाने वाला shop outside, आपका birthday या anniversary है, आपको एक item free में मिलेगा। सिर्फ एक आइटम। स्कीम समझ लीजिए पहले। The scheme is, पहला नंबर 1, झूठ नहीं बोलना आपका बर्थडे नहीं है तो। अगर आपका बर्थडे है या आपका एनिवर्सरी है तो एक व्यक्ति एक आइटम। अगर एनिवर्सरी है तो 2 व्यक्ति 2 आइटम। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। We're going to sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday all of you. Happy birthday to you. Let's clap our hands. Happy birthday, happy anniversary. Lord, we pray one more time. Bless them, bless their birthdays, bless their lives. Lord, 1 साल उनका जिंदगी का हुआ है, उसके लिए उनको आशीषित कीजिए। उनको सारे बीमारियों से, हर क्लेशों से दूर रख। परमेश्वर, अगर कोई एनिवर्सरी मना रहा है परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर आपने परिवार को 1 और साल बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। अगर बच्चे हैं तो उनको धन्यवाद। परमेश्वर, whatever you have given us, we thank you for our life, we thank you for our families, for our children, and for everyone that is in our circle and our sphere of influence. We thank you, Lord, that you have given us this beautiful day to worship you and to give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. उसी बात में, why don't we clap our hands and invite Pastor Abraham as he's going to come forward to share from the Word of God. ताली बजाकर हम पास्टर इब्राहिम का हम स्वागत करेंगे जब वो आगे आते हैं और वचन से हमारे बीच में मनादी करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I was just thinking, मैं ये सोच रहा था कि फ्री में कौन सा आइटम मैं लूं वहां से। I always read the list, the price list of the canteen, तो of वो the जो coffee shop. कैंटीन
जो बाहर जो लिखा है वहाँ पे जो कैंटीन में जो प्राइस का लिस्ट है, जो कीमत जो दाम लिखा हुआ है, मैं हमेशा वहाँ पे वो देखता हूँ। 10 रुपया से 70 रुपया तक पॉइंट है, आप 70 रुपया का फ्री ले लेना है, 10 रुपया का मत लेना। There are Amen. items worth up to 70 rupees, so you should make sure that you go for the expensive ones. Amen. Amen. And may God bless us all. परमेश्वर आपको बहुत आयत रूप से आशीषित Before करे। I preach today, I have got a very important thing I wanted to do because God has answered my prayer. मैं एक आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। And I've been praying for a pastor to join my team, to be able to be a caring pastor, taking care of the people around, and like a pastoral care. I was praying for a person who is not too young, but not too old like me. मैं प्रार्थना कर रहा था काफी समय से एक ऐसे पासवान के लिए जो इस कलीसिया के मेम्बरानों का और अच्छी तरीके से ध्यान रखे, जो ज्यादा जवान भी ना हो और मेरे जैसा ज्यादा बुजुर्ग भी ना हो। So God gave me the right person. और परमेश्वर ने मुझे एक उचित व्यक्ति को दिया। I have known him for quite some time, मैं उनको काफी समय से जानता था and you all know him also, but because he has been here in our church. But today I'm going to officially appoint him as one of the pastors of Capital Christian Center. और उस व्यक्ति को आप भी जानते हैं, लेकिन और वो हमारी कलीसिया में काफी समय से है, तो आज मैं औपचारिक तौर से उनको इस कलीसिया का पासवान घोषित करने जा रहा हूँ। For him, it is not a new responsibility. He has been working as a pastor in different cities for the last 20 years. और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी उनको, और पिछले 20 वर्षों से वो एक पासवान के तौर पे कार्यरहित थे, और आज वो हमारे बीच में हैं। But today I'm going to take this opportunity to lay my hands on him and officially appoint him as one of the pastors of Capital Christian Center. और आज मैं ये अवसर लेता हूँ उनको आगे बुलाने के लिए और उनको औपचारिक तौर पे इस कलीसिया के पासवान के रूप में नियुक्त करने में। So I request Brother Prince to come forward, please. और इस समय मैं चाहूँगा भाई प्रिंस आगे आएंगे। अरे ये कैमरा पकड़ के घूम रहा था, अभी कैसा पास्टर बन गया, ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? वो पास्टर था, हमारे लिए कैमरा पकड़ के घूम रहा था, लेकिन God has been using him for the last several years in the ministry. और भाई प्रिंस के बारे में कहूँ तो पिछले कई वर्षों से परमेश्वर उनको अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर रहे थे। Amen. आमीन। And I wanted him to buy me also one kurta like this. और मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके का कुर्ता उन्होंने पहना है वैसा एक कुर्ता मुझे भी खरीद के दे वो। देखो इतना चमक रहा है, मेरे को देखो क्या है, हैं? Okay, so we are going to pray and bless him and release him for God's ministry as part of this church. और अभी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनको आशीषित करेंगे और औपचारिक तौर से इस कलीसिया के पासवान के ओर पे उनको नियुक्त करेंगे। Amen. आमीन। Please come. Hallelujah. Wonderful Jesus. Everybody pray with me, please. आप लोग सब मेरे साथ प्रार्थना करें। I request you to stretch your hands towards him मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों को उनकी ओर फहराएं and pray that the Lord will bless him और प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको आशीषित करें and the Lord will prepare him to be a blessing for our church. और परमेश्वर उनको हमारी कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए मदद Heavenly करें। Father, in the name of Jesus, खुदावंद आसमानी पिता यीशु मसीह के नाम से I lay my hands upon Brother Prince. मैं अपने हाथों को भाई प्रिंस के ऊपर फहराता हूँ। I have talked with him and we have shared, and I believe it is God's plan that he should join and work with us. मैंने उनसे बात किया और हमने एक दूसरे से बांटा भी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमेश्वर की आशा है कि हमारी कलीसिया में वो एक पासवान के तौर पे नियुक्त हो। Over the last many years, he has proven to be faithful in your ministry. परमेश्वर काफी पिछले काफी वर्षों से वो आपकी सेवा में लगे हुए हैं I परमेश्वर। pray that he will continue to do that. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो उसी सेवकाई से आपकी सेवकाई में और भी
आगे बढ़ते And रहें। I release the gift of ministry that is in him to be used for God's glory. परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और वो सेवकाई का जो जो उपकार आपने उनको दिया है, मैं उनके ऊपर आशीषित तौर से मैं उसको देता हूं And परमेश्वर। that the anointing of the Holy Spirit will rest upon him. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीष उनके ऊपर और आपका अभिषेक उनके ऊपर उमड़े। Today, as a servant of the Lord Jesus Christ, आज यीशु मसीह के दास होने के नाम से, as the leader of Capital Christian Center, इस कलीसिया का एक अगवा होने के नाते I lay hands upon you मैं अपने हाथों को उनके ऊपर रखता हूं and I appoint you and separate you for God's ministry. और मैं आपको नियुक्त करता हूं परमेश्वर की सेवकाई के लिए और आपको अलग करता हूं उस सेवकाई के लिए। As one of the pastors of Capital Christian Center, और मैं आपको नियुक्त करता हूं इस कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर के एक पासवान होते। may the Lord use you to be a blessing to all people. हम जब परमेश्वर आपकी मदद करे ताकि हमारी कलीसिया के जन के लिए आप एक आशीष का कारण बने। May the Lord make you a soul winner. आपको लोगों को जीतने वाला व्यक्ति, आत्माओं को जीतने वाला व्यक्ति परमेश्वर बनाए। May the Lord use every talent that He has given to you for the building of this church and also His kingdom. आपके अंदर जो कोई भी टैलेंट है, आपकी जो कोई भी खूबियां हैं, उसको परमेश्वर और बढ़ाए ताकि ये कलीसिया आपके द्वारा बढ़ पाए। In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से I bless you with all God's blessings. मैं परमेश्वर की पूरी आशीषों के साथ उनको आशीषित करता हूँ। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। Amen. आमीन। Amen. ताली बजाना। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है। And last week was very busy and hectic for me. I've been traveling to different cities, to Kerala, preaching, doing some, messages on the television, all that. पिछला हफ्ता बहुत व्यस्त रहा मेरे लिए। मैं यात्राओं में लगा हुआ था, कई शहरों में गया, बहुत सारे प्रचार किए, पावर विजन टीवी के लिए भी काफी प्रचारों को मैंने शूट किया। And I reached home by 1 o'clock this morning. और आज सुबह 1 बजे मैं अपने घर में पहुंचा हूं। But I always believe that you get refreshed and strengthened when you worship God. और लेकिन मैं पूर्ण तौर से ये विश्वास करता हूं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप और भी बढ़ोतरी से शक्तिशाली बनते I हैं। believe that with all my heart. और मैं पूरे मन से इस बात का विश्वास करता I हूं। was sitting here and watching all our brothers, mostly brothers, working around doing different things in और this. मैं in this वहां church. बैठा हुआ था, मैं देख रहा था अपने भाइयों को जो कई कार्यों में इस कलीसिया के लगे हुए थे। Amen. आमीन। So I wanted to just encourage everyone who is involved in any kind of responsibilities in the church. Always remember, you are not just doing something somewhere, but whatever you do, you should keep on worshiping God with others. मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं इन वचनों के साथ, ये बताते हुए कि जो कोई भी कार्य आप इस कलीसिया में कर रहे हैं, आप जो भी योगदान दे रहे हैं, लेकिन आपको योगदान के साथ साथ परमेश्वर की आराधना अपने दूसरे भाइयों और बहनों के साथ करते रहना भी जरूरी है। More than setting up the things here, the cameras, and receiving the people, whatever we do. But the most important thing is we are here as the worshippers of Jesus आप Christ. जो किसी कार्य में भी लगे हुए हो, चाहे आप कैमरा में लगे हुए हो या लोगों का स्वागत करने में लगे हुए, लेकिन सबसे ऊपर, सबसे बढ़कर आपको ये जरूरी है कि आप परमेश्वर की आराधना में भी लगे रहे। Remind yourself every Sunday when you're here. आप इस बात को अपने मन में जरूर गांठ बांध ले कि सारे काम के साथ साथ आपको परमेश्वर की आराधना में ज्यादा योगदान देना And है God will bless us. और परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। Nice to have some of our brothers and sisters from Manipur
who are attending the service with us today. और हमारे मणिपुर से कुछ भाई बहन हमारे बीच में हैं, बहुत अच्छा है, उनको भी हम उनका भी स्वागत करते हैं। We pray God's blessings upon you. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर बने Not रहे। only for you, we pray for every Christian in Manipur. सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मणिपुर के सारे ईसाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray that the riots will come to an end. हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी दिक्कतों में है वो खत्म हो जाए। Shooting and fighting will come to an end. जो भी लड़ाइयाँ वहाँ पे हो रही हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाए। The peace of God should come and rest in that state. परमेश्वर की शांति मणिपुर प्रदेश में बहुत ही जल्द आए। More than what the government can do, more than what the police can do. जो कुछ भी सरकार कर सकती है, जो कुछ भी पुलिस कर सकती है, उन सब से अधिक We commit Manipur in the hand of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में हम मणिपुर को समर्पित करते हैं। We pray that our people will be able to go back to their homes. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जन अपने घरों में वापस चले जा पाएं, They can continue with their life in their home state. ताकि वो अपने घर में अपने जीवन को व्यतीत कर पाएं। That is my prayer for everyone. और वही है मेरी प्रार्थना आपके लिए। And I believe that God will do that for us. और मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में ये कार्य जरूर करेंगे। I want to join with Pastor Ranjit to everyone who are generously giving towards the cause of helping these families. और पासवान रंजीत के साथ साथ मैं भी उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस नेक काम के लिए अपने हाथों को बढ़ाया। I promise you that God will abundantly bless you for your heart and for your generosity to our own brothers and sisters who are in need. मैं आपको वादा देता हूं कि जो भी आपने अपना हाथ बढ़ाया है, परमेश्वर आपको बहुतायत रूप से आशीषित करेंगे। Amen. आमीन। I want to share with you a message today which I will title Walk with God. और आज आपके बीच में मैं एक ऐसा प्रचार करना चाहता हूं जिसका शीर्षक मैं देता हूं परमेश्वर के साथ चलना। So nice to have with us the students from Bethesda Christian Academy. और बेथेस्दा क्रिश्चियन एकेडमी से Bethesda Bible Institute. और बहुत खुशी है कि हमारे बीच में आज बेथेस्दा बाइबल इंस्टीट्यूट से जो बच्चे आए हैं, आपका भी मैं स्वागत करता जो हूं। बात मेरे मुंह से गिर गया वो भी अच्छा है क्योंकि कुछ Bethesda Christian Academy से भी कुछ लोग इधर हैं। आप लोगों को प्रभु आशीष दें। Amen. आमीन। Amen. Turn with me to Psalm 101. आप मेरे साथ खोलें भजन संगीता 101 We are going to read verse 6. और उसके छठे वाक्य को हम पढ़ेंगे। Psalm 101 verse 6. भजन संगीता 101 उसका छठा वाक्य। My eyes shall be on the faithful of the land, that they may dwell with me. He who walks in a perfect way, he shall serve me. 101 verse 6. मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। The word says that he who walks in a perfect way, he shall serve me. परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास योग्य रहेगा वही मेरी सेवा करेगा। This is the word of the Lord coming to everyone. ये हम सब के लिए परमेश्वर का वचन आ रहा है। Who will walk in a perfect way? जो विश्वास योग्य बन के चलेगा, What does that mean? उसका क्या तात्पर्य है? It means that we walk with God. इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ चले। God has called every one of you and me to walk with him. परमेश्वर ने हम सबको इसीलिए बुलाया है ताकि हम उनके साथ चल सके। The day that we dedicate our life to Christ, जिस दिन हम अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित करते the हैं, day that Jesus came into our heart, उस दिन जब यीशु मसीह हमारे जीवनों में आए, the day that our sins were forgiven, उस दिन जब हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला, when you and I became a child of God, और वो दिन जब आप और मैं परमेश्वर के एक बच्चे बने, truthfully, from that day we should be walking with God. और सच्चाई ये है कि उस दिन से हमें परमेश्वर के संग ही चलना है। When we walk with God, जब हम परमेश्वर के संग चलते हैं, God takes control of your life.
परमेश्वर आपके जीवन को चलाने लगते And हैं। everything that God has got, He will give it to us. जो कुछ भी परमेश्वर के पास है वो हमें देंगे। He will protect you. वो आपको सुरक्षित रखेंगे। He will provide for you. वो आपके लिए कार्य करेंगे। He will guide you. He will guide you. वो आपको चलाएंगे। And His hand will be upon us. और उसका हाथ हमारे जीवन में रहेगा। Then the question is this. लेकिन सवाल ये है, Many times in our life, कई बार हमारे जीवनों में the way that we feel, जैसे हम अपने जीवन में सोचते the हैं, way that we talk, जैसे हम बात करते हैं, it seems like you are living your life on your own. उसका वो दर्शाता है कि हम अपने तौर से ही अपना जीवन चला रहे हैं। There should not be one day in your life, not even one moment in your life, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में ऐसा एक दिन नहीं होना चाहिए, ऐसा एक क्षण भी नहीं होना चाहिए that you are alone. कि आप अकेले चल रहे हैं। That means the question is, where is God in your life? तो सवाल यहाँ पे ये है, परमेश्वर आपके जीवन में कहाँ है? We are never alone in our life मैं आपको बताना चाहता हूं, हम हमारे जीवन में कभी भी अकेले नहीं हैं, because God is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। We have been called to walk with Him. हमारी बुलाहट है कि हम परमेश्वर के साथ चले। Hallelujah. हालेलुया। That is my message for you. वही है आज का प्रचार आपके लिए। If you don't hear anything more than what I'm going to say, this thing you should take with you today in your hearts. चाहे आप जो मैं आगे बताने वाला हूं उसको ना भी सुने, लेकिन इस बात को जो मैंने आपको बताया है वो जरूर अपने हृदयों में आप बांध ले। I am never alone. मैं कभी भी अकेला नहीं हूं। My struggle is not alone. मेरे जीवन की जो दिक्कतें हैं वो अकेले से मैं नहीं उसको सह रहा हूं, But my God is with me. मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। How do I know? मैं अकेला नहीं हूं। How do I know that I am not alone? मैं कैसे ये जानूं कि मैं अकेला नहीं हूं? Because I walk with God. क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं। When you walk with God, that means God walks with you. क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपके साथ चलते हैं। Let me touch on a few people who walked with God and what difference they made. अच्छा, ऐसे लोगों के बारे में देखते हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में क्या क्या बदलावट लाते हैं। When you look at the book of Genesis chapter 5, जब आप उत्पत्ति की किताब उसके 5वें अध्याय को देखते हैं, it gives us the genealogy starting from Adam and it goes all the way to Noah. और हम देखते हैं वहां पे पीढ़ियों के बारे में लिखा हुआ है जो शुरू आदम से होता है और नूह तक पहुंचती है। And in the middle of that, और उसके बीच में it talks about one man. एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है And his name was Enoch. और उस व्यक्ति का नाम है इनोख। And about his life, और उस व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा गया है, it says like this. ऐसा कहा गया है, Enoch was 65 years old. इनोख जो है वो 65 साल का था। And then he found God. और उसने हानोक ने परमेश्वर को पाया। And from that time onwards, और उस समय से he walked with God for 300 years. और उस समय से आगे आने वाले 300 साल तक हानोक परमेश्वर के साथ चला। That was his Christian life. और वो थी उसकी मसीही जीवन। That was his life with God. और वो था उसका जीवन परमेश्वर के साथ। He walked with God for 300 years. हानोक 300 साल परमेश्वर के संग चला। What does it mean? और उसका क्या मतलब है? Not just literally walking with God. उसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ साथ ऐसे चला। What is walking with God? उसका क्या मतलब है कि वो परमेश्वर के साथ चला? Walking with God is dedicating his life to God. परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये है अपना जीवन परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित करना। Walking with God is enjoying his presence. परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये है उनकी उपस्थिति का आनंद उठाना। Walking with God is believing God. परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये है परमेश्वर पर विश्वास रखना। Why am I saying all these things? मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? Because I want you to understand what it means to walk with God. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे जो मैं बता रहा हूँ आपको। Because here it talks about one man walking with God for 300 years. क्योंकि 300 साल परमेश्वर का वचन कहता है
एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चला। What did he do? उसने ऐसा क्या किया? How did he walk? वो कैसे परमेश्वर के साथ चला? When you walk with God, all these virtues will come and show up in your character. क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर की जो भी खूबियां हैं वो आपके अंदर दिखने लगती है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Enjoying God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना। If you don't enjoy the presence of अगर God, आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद नहीं उठाएंगे, if you don't enjoy worshiping God, अगर आप परमेश्वर की आराधना करने में आनंद नहीं if you उठाएंगे, don't enjoy the things of God, आप परमेश्वर की दी हुई चीजों का आनंद नहीं उठा पाएंगे। that means you are not walking with God. इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे So हैं। today you should ask yourself, तो आज आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है, am I truly walking with God? क्या मैं सच्ची तरीके से परमेश्वर के साथ चल रहा हूं या नहीं? 300 years. 300 साल। Some people will come to the church, कुछ लोग कलीसिया आते हैं, they will give their heart to Jesus. वो अपना हृदय परमेश्वर यीशु मसीह को देते Maybe हैं they'll take water baptism. और वो बपतिस्मा भी लेते हैं, But after a few months, लेकिन कुछ महीनों के बाद where are they? वो कहाँ चले गए? They are gone. वो चले गए, They've gone back to their old life. वो अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। Their walk with God was only 7 months. उनका जो चलना था परमेश्वर के साथ वो सिर्फ 7 महीने का था। Somebody else's walk with God is only 5 years. कुछ लोग सिर्फ 5 साल परमेश्वर के साथ चलते हैं। Amen. आमेन। I've been walking with God from 1968. मैं That is परमे- almost 55 years. मैं परमेश्वर के साथ 1968 से हूं, जो लगभग 55 साल से अधिक हो चुका है। I will never forget the day that I got saved. मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मैं बचाया गया। I forgot all the other days, my birthdays, our wedding anniversary. Joyce doesn't like that, but many times I've forgotten the wedding anniversary. मैं अपने जीवन के कई बड़े बड़े दिनों को भूल जाता हूँ, जैसे मेरी शादी की सालगिरह। भले ही मेरी पत्नी को वो अच्छा ना लगे, लेकिन बड़े बड़े मेरे जीवन के जो भी दिन हैं मैं भूल जाता हूँ। But I will never forget the day that Jesus saved me. लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं भूलता हूँ जो दिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। Because if God did not set that day in my life, क्योंकि परमेश्वर ने वो दिन मेरे हृदय में एक मदछाप की तरह वो डाल दिया है। 17th of August 1968. 17 अगस्त 1968। Many of my friends, मेरे काफी मित्र they ended up in the jail. वो जेल में जाके बंद रहे, उनका जीवन जेल में समाप्त हुआ। A few of my friends, कुछ मेरे मित्र they committed suicide. उन्होंने आत्महत्या कर ली। But except for that day, I would have been one of them. अगर मैं परमेश्वर द्वारा बचाया नहीं गया होता तो उनमें से एक होता आज। Amen. आमेन। But God took me out from that place. लेकिन उस स्थान से परमेश्वर ने मुझे निकाला He took me out of the deep pit and the miry clay. और उस गंदगी से उस वो जो डीप स्थान था वहां से गहराई से परमेश्वर ने मुझे निकाला। He washed me with His precious blood. उन्होंने अपने वो पवित्र लहू से मुझे धोया And He said to me, walk with me. और परमेश्वर ने मुझसे कहा आओ मेरे साथ चलो, And I'm walking with Him. और मैं उनके साथ चलने लगा। I went through lots of hardships, but no complaint in my life. और मैं परमेश्वर के साथ चला, मेरे जीवन में कोई भी दिक्कतें नहीं है। Because in every situation of my life, I knew without a shadow of doubt, my Jesus is always with me. मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन के हर क्षण में मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। 300 years, 300 साल He did not miss a beat. He was always there with God. Enoch was always with God. हानोक हमेशा परमेश्वर के साथ था। He did not get bored because it was 300 years. वो कभी भी बोर नहीं हुआ कि वो परमेश्वर के साथ है ये 300 साल में। One time, a pastor was teaching from the Word. एक समय एक पासवान परमेश्वर के वचन से बांट रहे थे He was teaching on eternity. और वो अनंत काल के जीवन के बारे में वो बांट रहे थे। And he said that how much will be wonderful for us, we'll be worshiping God for through eternity.
और उन्होंने ऐसा बांटा कि ये कितना अच्छा होगा, आनंद की बात होगी कि हम परमेश्वर को अनंत काल तक आराधना करते रहे। So one smart guy was there in the meeting, और वहां पे एक व्यक्ति था उस सभा में, and he said, "Preacher, और उन्होंने कहा, पासवान let me say something." मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। He said, "Eternity is a long time." अनंत काल जो है वो बहुत लंबी एक समय है। And he said, "You said we'll be worshiping Jesus." और आप कहते हो उतने लंबे समय के लिए हम यीशु मसीह की आराधना करें। And he said, "Won't it be boring for worshiping all this time?" क्या उन्होंने कहा कि अगर हम इतने समय तक अगर यीशु मसीह की आराधना करते रहे तो क्या वो बोरिंग नहीं होगा? And the preacher smiled and he said, "You know, I don't think heaven is for you." तो वो प्रचारक जो थे वो हंसते हुए उनको कहा उन्होंने कि मुझे पता है कि स्वर्ग आपके लिए नहीं है, Because you get bored in the things in heaven. क्योंकि जो स्वर्ग में जो चीजें हैं उससे आप बोर हो जाओगे। Amen. आमीन। He walked with God. वो परमेश्वर के साथ चला। As we were walking one day, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं in एक the दिन, evening God says, "Well, I'm going to the heaven, you go home and we'll meet tomorrow." और एक दिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और आपको कल मिलता हूँ। But that particular day, लेकिन उस दिन Enoch said like this, हानोक ने ऐसे कहा परमेश्वर "I don't से, want to go back. मैं वापस जाना नहीं चाहता हूँ, I want to come to your house. मैं आपके साथ आपके घर में आना चाहता I want हूँ, you to take me to heaven." मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ मुझे स्वर्ग ले जाएं। God did not argue. परमेश्वर ने उसके साथ बहस नहीं की। Okay, let's do it. Come on. परमेश्वर ने कहा चलो फिर मेरे साथ, And he went with God. और वो परमेश्वर के साथ चला The गया। evening came. और वो शाम आई। Enoch's wife said, "Hey, we can't find the old man. Where is he?" हानोक की पत्नी कहती है ये बूढ़ा व्यक्ति कहाँ गया, वापस घर नहीं आया। He sent his son, "Go and find him." और वो अपने बेटों से कहते हैं जाओ उनको ढूंढो। So he went to all the familiar places, but he was not there. और जहाँ जहाँ तक ईनोक जा सकते थे वहाँ सब वो गए, लेकिन हानोक को पा नहीं He पाए। came back and said, "Mama, can't find Papa anywhere." और उनके बच्चे वापस आते हैं और कहते हैं माता जी हम पापा को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। But the Bible did not finish about Enoch saying he was lost one day. जो बाइबल, लेकिन बाइबल में जो है परमेश्वर के वचन में जो है हानोक के बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि वो खो गया एक दिन। No. नहीं। The Bible finishes like this. परमेश्वर का वचन उस तरीके से समाप्त होता है हानोक They के बारे could में। not find Enoch वो हानोक को ढूंढ नहीं पाए because God took him. क्योंकि परमेश्वर उनको ले गए। Hallelujah. हालेलुया। Enoch walked with God right through his life. हानोक परमेश्वर के साथ चला अपने पूरे जीवन में। How should we walk? हम कैसे परमेश्वर के साथ चले? What will happen when you walk with God? क्या होता है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं? You should walk like Noah walked. Noah. Yeah. We should walk with God like Noah was walking with God. हम ऐसे चले परमेश्वर के साथ जैसे नूह चला। How did Noah walk? अब नूह कैसे चला परमेश्वर के In the साथ? middle of a sinful and perverse generation. उस पापी उस समुदाय के बीच में। To the extent God said, "I want to wipe out this world. एक दिन परमेश्वर कहता है इस पापी समूह को मैं समाप्त करना चाहूंगा। I want to kill everybody. मैं सबको समाप्त करना चाहूंगा। I'm sorry that I created man." मेरे को बहुत अभी बुरा लग रहा है कि मैंने मनुष्य को पैदा किया। But in the middle of that, he found a righteous man. लेकिन उस पाप के बीच में उसने एक धर्मी व्यक्ति को पाया। And it says Noah walked with God. और परमेश्वर का वचन कहता है नूह परमेश्वर के संग चला। How did he walk with God? और वो कैसे परमेश्वर के संग चले? God told him, "I want you to build an ark. परमेश्वर ने कहा कि आप एक नाव को बनाओ And I'm going to destroy the world with water, with rain." और मैं बारिश के साथ पानी भर के इस संसार को नष्ट कर दूंगा। Until the time of Noah, नूह के समय तक there was no rain. कभी भी बारिश नहीं होती People थी। have never seen water falling from the sky. कभी भी लोगों ने आसमान से पानी को गिरते हुए नहीं देखा था। God will wet the ground with a mist in the night, परमेश्वर जो है रात को जमीन में नरमी कर देते थे and the people cultivated.
और उसी से लोग जो है अपना कृषि करते थे। But now God is saying, what is going to fall from heaven? अब परमेश्वर कहते हैं आसमान से पानी बरसेगा। But he was talking to a man who was walking with God. और अब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो उनके संग चल रहा है। Noah did not question him. नूह ने कभी परमेश्वर पर सवाल नहीं He उठाया। believed God. नूह ने सवाल नहीं उठाया And he believed in God. उसने परमेश्वर पर विश्वास किया And he built the ark. और उन्होंने उस बड़े नाव को बनाया। Everybody laughed. Everybody ridiculed. They thought he was a man gone off his head. सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए, उसके ऊपर हंसने लगे, कहने लगे कि ये पागल व्यक्ति है जो इतना बड़ा नाव बना रहा है। But Noah prepared for the salvation from this horrible world because he walked with God and God saved him and his family. लेकिन नूह परमेश्वर के वचन अनुसार अपने उद्धार के लिए उस पापी जन के बीच में से परमेश्वर के वचन को मानते हुए उस नाव में गया ताकि वो और उसका परिवार बचाया जा सके। You should walk like Moses. आपको मूसा की तरह चलना है। He believed in God. वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। He went to Egypt in obedience to God. वो मिस्र में गया परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए। He brought the judgments of God upon that land. और वहां पे उसने न्याय को उनके बीच में बांटा। And he prepared himself to bring God's people out of the land of Egypt. और अपने आप को उसने तैयार किया कि उस मिस्र के प्रदेश से अपने जन को कैसे परमेश्वर के भूमि तक लेके आए। He was able to do that because Moses walked with God. वो कार्य इसीलिए कर पाया क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ चला। Hallelujah. हालेलुया। You must walk with God like Daniel walked with God. आपको दानियेल के समान परमेश्वर के साथ चलना है। Daniel said like this, दानियेल ने ऐसा कहा, I will not defile myself with the food of the king. मैं कभी भी अपने आप को इस राजा के भोजन के द्वारा अपने आप को गंदा नहीं करूंगा। I will eat lentils and rice and that is enough for me. चाहे मैं दाल और चावल ही क्यों ना खाऊं लेकिन राजा का ये भोजन नहीं खाऊंगा। Right in the middle of slavery, उस बंदगी के बीच में भी he walked with God. वो परमेश्वर के साथ चला। He will pray 3 times a day. वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। He was taken and thrown into the den of lions. उसको शेर के बीच में डाला गया। But he knew that the God that he is walking with will be there in the middle of the lions. लेकिन वो जानता था उस शेर के बीच, सिंह के बीच में भी उसका परमेश्वर जिसके साथ वो चलता है वो उसे जरूर बचाएगा। Shadrach, Meshach, Abednego were thrown into the fire. शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के बीच में डाला गया। And the king said like this, और राजा ने ऐसा कहा, I am seeing a 4th person inside. राजा कहता है ये देखो मैं उस चौथे व्यक्ति को उस आग के बीच में देख रहा हूँ। We only threw 3 people, but there's a 4th person inside the मैंने fire. सिर्फ 3 लोगों को आग में ढकेला था लेकिन मैं एक चौथे व्यक्ति को भी देख रहा हूँ। Who is that 4th person? वो चौथा व्यक्ति कौन है? The one who will never leave you. वो ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं He will आपको never walk छोड़ेगा। away in the middle of the fire. वो आपको कभी भी आग के बीच में अकेला नहीं छोड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। When they throw you into the fire, वो आपको आग में जरूर डाल दें my God will jump inside the fire. लेकिन उस आग में मेरा परमेश्वर जरूर कूदेगा। My God will protect you from the heat of the fire. उस आग की गर्मी से मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। He will make that fire as an air-conditioned room for His people. वो आग को भी मेरा परमेश्वर एक एसी के समान ठंडा कर देगा। He will be small, laughing and dancing with them. वो मेरे साथ हंसेगा और नाचेगा गाएगा। That is the God that we serve. वही परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। Amen. आमेन। I got a few more things to say, but it's enough for us today. और यही प्रचार है आपके लिए मेरे आज का। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, walking with God does not mean that we won't have any trouble. परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई दिक्कतें या मुसीबतें नहीं आएंगी। It doesn't mean that we won't have any challenges, we won't have any sickness. No, we will have all through this. मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि दिक्कतें, बीमारियां हमारे जीवन में नहीं आएंगी। ये सब हमारे जीवन में आएंगी। We are living in this body.
हम इस शरीर में जी रहे हैं, We are living in this world. हम इस संसार में जी रहे And हैं, all these things we have to go through in our life. हम इन सब चीजों से, दिक्कतों से हमें गुजरना है हमारे जीवन में। Then what is the point of walking with God? लेकिन इसका मतलब फिर क्या है कि परमेश्वर के साथ चलना। David said so nicely in Psalm 23. दाऊद जो है भजन संगीता 23 में बहुत अच्छी तरीके से कहता है। Verse 4 says like this. चौथा वाक्य ऐसा कहता है, Though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं तराई में से भी क्यों न चलूं, I do not fear. I won't be afraid मैं कभी डरूंगा नहीं, because you are with me. क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। Amen. आमीन। That is the difference. और वही है उसका तात्पर्य। Darkness will come, valley of death will come, challenges will come, but the good news is thou art with me. तो परमेश्वर का मतलब ये है, परमेश्वर के संग चलने का मतलब ये है, भले ही मैं अंधकार भरी तराई में क्यों ना चलूं, चाहे मैं मुसीबतों और दिक्कतों से क्यों ना चलूं, मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मेरे साथ है। I will not fear. मैं कभी डरूंगा नहीं। And your rod and your staff will comfort me. और तू हमेशा तू अपने छड़ी के साथ मुझे बचाएगा और मेरे साथ चलता रहेगा। That is the promise. और वही है वो वादा जो That परमेश्वर is ने, our blessing. वही है हमारा आशीष। All these things will happen सारी दिक्कतें मुसीबतें हमारे जीवन में आएंगी because we walk with God. क्योंकि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। Would you tell yourself, hey, I am walking with God? जब आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर के संग चल रहा हूँ, But sometimes I forget. कभी कभी ऐसा होता है, Challenges makes me to unbelieve, to doubt God. तो जब मेरे जीवन में ऐसी दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो मैं शक करने लगता हूँ परमेश्वर पे। Today's message is just to remind you that we walk with God and God walks with us and God will take care of us. लेकिन आज का प्रचार आपके लिए ये है कि हमारे जीवन में चाहे कोई भी मुसीबत आए, हम परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर हमारे संग चलेगा और इन सारी मुसीबतों से हमें बचाते You know, हुए the चलेगा। greatest blessing is not you walking with God. The greatest blessing is God walking with you. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा आशीष ये नहीं है कि आप परमेश्वर के संग चल रहे हैं, The creator सबसे of- बड़ा आशीष ये है कि परमेश्वर आपके संग चल रहा The है। creator of the universe, जिसने संसार की रचना की, the Almighty God, सबसे बड़ा महान He परमेश्वर, says, वो कहते हैं, hey Joby, हे भाई, Joby, हे जोबी, I'll walk with you. मैं तेरे संग चलूंगा। It's not a big deal for Joby to walk with ये God. कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई जोबी परमेश्वर के साथ चले, But it's a big deal that God walks with Joby. लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो महान परमेश्वर इस भाई के साथ चल रहा है। I see somewhere it's written in the houses like this. और मैंने कई घरों में ऐसा लिखे हुए देखा है, I believe in God. मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, And we think it's a big deal. और मैं उनको लगता है कि बहुत बड़ी बात है। It is a good thing to believe in God. और ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर पे विश्वास आप कर रहे हैं। But do you know what is greater thing than that? लेकिन आपको पता है उससे भी बढ़कर क्या है बड़ी Greatest बात? thing is God believes in me. उससे भी बढ़कर बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आप पे और मुझ पे विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। God looks at you and says, hey, I believe in you. आपको देखकर परमेश्वर कहते हैं, हे भाई, हे बहन, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। It's not we believe in him, but he believes in me. ये कोई बड़ी बात नहीं कि आप उस पे विश्वास करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो आप पे विश्वास करता है। And he makes us worthy to what we are today. और वो हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम उसके साथ, और हमें योग्य बनाता है ताकि हम उसके साथ चल सके। My life story, my testimony is this: God believed in me.
मेरे जीवन की मेरा जो टेस्टिमनी है, जो गवाही है, वो ये है कि परमेश्वर ने मुझ पर भरोसा रखा। Even the times that I could not believe in myself. ऐसे समय जब मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाया, When I said I can't do it. मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। Time and time again God said, hey, I believe in you. बार बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, You can do it. आप ये कर सकते And हैं। he was right. I was able to do because he believed in me. और वो कार्य मैं कर पाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर विश्वास किया। He believes in you. वो मेरे पे विश्वास करता है, He wants to walk with you. वो आपके साथ चलना चाहता है। Remind yourself every day of your life, I am walking with God. हाँ, अपने जीवन के हर एक क्षण में, हर दिन में आपको अपने आप को ये याद कर रखना, आपका हमेशा ये बात को याद करवाना है कि मैं परमेश्वर के संग चल रहा हूँ। You happy with that? क्या आप खुश हैं इस बात से? Are you happy that you walk with God? क्या आप खुश हैं कि आप परमेश्वर के संग चल रहे Are you हैं? happy that God walks with you? क्या आप खुश हैं कि परमेश्वर आपके संग चल रहे हैं? Are you happy that you believe in God? क्या आप खुश हैं कि आप परमेश्वर पे विश्वास करते Are हैं? you happy that God believes in you? और आप इस बात पे क्या खुश हैं कि परमेश्वर आप पर विश्वास रखते हैं? Stand with me, please. आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए। Let us pray together. आइए एक साथ हम प्रार्थना करें। Walk with God. परमेश्वर के संग चलना, Walk like Enoch. उस हानोक के समान, Walk like Noah. उस नूह के समान, Walk like Moses. मूसा के समान, Walk like Daniel. दानिएल के समान। Believing in God in every situation of our life. हमारे जीवन की सारी परिस्थितियों में उस परमेश्वर पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास रखना। Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord, for खुदावंद today. आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। As I am continuing praying, I just wanting to ask if there is anybody who is sick in your bodies today. मैं जैसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे अनुरोध है कि आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, Any kind of sickness in your body, कैसे भी बीमारी आपके जीवन में, small or big. चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। I feel in my spirit I should pray for you. मैं अपने आत्मा से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। Lift up your hands if you are sick in your body. अगर आप अपने शरीर से अस्वस्थ हैं तो अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, Because the healing power of the Lord is here. क्योंकि यीशु मसीह की चंगाई देने वाला सामर्थ्य हमारे बीच में है। The Lord wants to heal everyone who is sick in your body. जो कोई भी अपने शरीर से अस्वस्थ है, बीमार है, परमेश्वर यीशु मसीह आपको स्वस्थ और चंगा करना Father, चाहेंगे। in the name of Jesus, खुदावंद आसमानी पिता, यीशु मसीह के नाम से I pray for my brothers and sisters who have lifted up their hands. मैं अपने भाइयों और बहनें के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिन्होंने अपने हाथों को ऊंचा I उठाया। pray in the name of Jesus मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम that the से, healing power of God will touch everyone. परमेश्वर की चंगाई देने वाला सामर्थ्य इन सब के जीवन में उतरे। Every sickness and disease will leave in the name of Jesus. आपका हाथ इनको छुए और इनके जीवन में जो भी अस्वस्थताएं हैं I और command- जो भी बीमारी है वो उनको छोड़ दे। I command people to be healed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से मैं ये आज्ञा करता हूँ कि वो तुरंत चंगाई प्राप्त करें। Receive healing in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आप चंगाई को प्राप्त करें। Receive miracle in every area of your life. आपके जीवन के सारे स्थानों पे आप चमत्कार को देखें। God's name will be glorified. यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का नाम आप द्वारा ऊंचा उठाया जाए। Meet the needs of everyone. हम सबकी जरूरतों को आप पूरा करें। Protect us, Lord. हमें आप सुरक्षित रखें We परमेश्वर। pray for the state of Manipur. हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं। Even now there are riots going on, killings going on, Lord. परमेश्वर अभी भी लोगों को वहां पे मारा जा रहा है। Mercy, 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 Lord. करुणा करुणा करुणा, आपकी करुणा परमेश्वर। Lord, protect our people. हमारे जन को आप सुरक्षा दे। Even some of the people who are here with us, we bless them. परमेश्वर जो कोई भी यहाँ पे उपस्थित है, हम उन सबको आशीषित करते हैं। Lord, Princess joined
the pastoral team of our church. हमारे पास्टर प्रिंस जो हैं वो हमारी सेवकाई में आज से नियुक्त हुए हैं। Bless him and his family. उनके परिवार को और उनको आप आशीषित करें। Everyone is working in the church, Lord. जो कोई भी हमारी कलीसिया में कार्य कर रहे हैं परमेश्वर, Everybody who is in the leadership. जो कोई भी अगुवों में है I परमेश्वर, pray your blessing will be upon each and मैं every one. प्रार्थना करता हूँ आपका आशीष उन सब पे बनाए रखें। Send us from this place with your blessing. आपके आशीष के साथ आप यहाँ से हमें भेजें। Take care of us, Lord. हम सबको आप संभाले Make our परमेश्वर। church to grow. हमारी कलीसिया को आप बढ़ाए परमेश्वर। You want the church to grow. हाँ, आपकी कलीसिया को आप बढ़ाए परमेश्वर। You want to save the people. परमेश्वर हमारे जन को आप बचाएं। We are joining with you and we pray, save the people. परमेश्वर आप हमारे जन को बचाएं। Lord, save the people and bring them, Lord. परमेश्वर आप जन को लोगों को बचाए और उनको कलीसियाओं में लाए। Fill this place with God's people. आपके जन के साथ हमारी कलीसिया को आप भरें। We give you the praise and glory. सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us from this time forevermore. Amen. Hallelujah. हालेलुया।